So before starting the scheduling, first of all, we should know what is scheduling. Anyone can respond? आप लोगों ने लैब में इसके प्रोग्राम्स किए होंगे शेड्यूलिंग से. What is scheduling? Can anyone answer? Anyone? Okay, so let me tell you with very few little example. Suppose I have three processes P1, P2, and P3. Right? I have three processes P1, P2, P3, and this is the processor. We can say CPU. Now, what will happen? CPU will allow. Is it visible? Now I think screen will visible. Yeah. In CPU, what will happen? CPU will start execution of suppose process P2. Now, what will happen with the process P1 and P3? So, is there any policy so that we can execute process P1 and P3 also, or we can say is there any rule or set of policies? So whatever the rule and policies we are using or we are used to execute the processes that are called that policies are called the scheduling. So basically a scheduling is a set of policies. Again I'm repeating, scheduling is a set of policies to execute the pending jobs or we can say pending processes. ऐसी कोई भी पॉलिसी जिसके थ्रू हमारे जो पेंडिंग प्रोसेसेस पड़े हुए हैं जिनको अभी सीपीयू नहीं मिला हुआ है उनको एग्जीक्यूट करने के जो भी हमारी पॉलिसीज या रूल्स होंगे दैट रूल्स आर कॉल्ड द शेड्यूलिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Generally we have number of algorithms. One is the very first one is FCFS, that is called the first come first serve, and the next one is SJF. This is called the shortest job first, and the third one is priority scheduling, and the last one is round robin algorithm. So total we have to studied four algorithms: FCFS, SJF, priority, and round robin. So before starting the actual algorithms, let us discuss what are the scheduling criteria. I mean, on which basis, on which parameters we are going to use or we are going to design our algorithms. So the very first point is, just a second. So the very first point is, if I talk about scheduling criteria, one is CPU utilization, right? The very first point is CPU utilization, and as far as CPU utilization is concerned, in that case, we will always try to achieve the utilization of CPU up to 100%. But as you already know, there is nothing ideal. 100% तो कभी मिल ही नहीं सकता है. That's why I mentioned we will try to achieve up to 100% utilization. So whatever the algorithm will be, our objective is to improve the CPU utilization. That means CPU utilization should always increase. Our algorithm should be something such that CPU has always one job to execute. Now the next point is throughput. And basically throughput is number of tasks
or we can say number of processes completed per unit time. एक यूनिट सेकंड में या एक यूनिट टाइम में हाउ मेनी प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड, दिस इज कॉल्ड द थ्रूपुट. एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो एक सेकंड में कोई एक आपने एल्गोरिथम डिजाइन की जिसमें एक यूनिट सेकंड में मान लो 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और किसी दूसरे बंदे एक्स ने एक एल्गोरिथम डिजाइन की जिसमें एक यूनिट सेकंड में 100 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन सी एल्गोरिथम बेटर होगी भाई? जिस एल्गोरिथम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूनिट सेकंड में ज्यादा होंगे, यूनिट टाइम में ज्यादा हो जाएंगे, वो प्रोसेस में क्या होगा? थ्रूपुट ज्यादा होगा, यानी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, दैट मींस वो एल्गोरिथम ज्यादा अच्छी होगी. ठीक है ना? तो थ्रूपुट इज nothing, throughput is what? Throughput is number of processes, or we can say number of tasks completed per unit time, and this is called the throughput. Right? Now the next one is turnaround time. Turnaround time. Basically, turnaround time क्या होता है? The time interval between the submission of the job to the completion of the job. For example, मैंने 12:20 से अपनी क्लास स्टार्ट की, सपोज. ठीक है, 12:20 से क्लास स्टार्ट की. नाउ 12:20 से 12:50 तक मैं जो क्लास लूंगा, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा, that will be turnaround time. Time interval between the submission of the job to the completion of the job is called the turnaround time. And one more thing, suppose आप 8:45 पे, और we can say 9 AM पे आपने कॉलेज में एंट्री की. अगर आपका कॉलेज नॉर्मल मोड में चल रहा होता, सपोज 9 AM पे आपने कॉलेज में एंट्री की एंड एट 5 PM आपने कॉलेज से एग्जिट किया. तो between the 9 AM to 5 AM, एक सेकंड, क्लास एक सेकंड होल्ड करना. ओके क्लास, सो सपोज 9 AM पे आपने क्लास में एंट्री की एंड 5 PM पे आप एग्जिट कर रहे हो. तो टाइम इंटरवल बिटवीन द 9 AM टू 5 AM, इसके बीच का जो टाइम है 9 3 12 और 5, जो 8 घंटे का टाइम है, टोटल 8 आवर्स का, दैट इज योर व्हाट? टर्न अराउंड टाइम. अगर आपका नॉर्मल मोड में क्लास चल रहा होता और अपने कॉलेज के गेट में 9 बजे एंट्री की होती, 5 बजे वहां से एग्जिट करते, तो 8 घंटे आपका टर्न अराउंड टाइम होता. यानी उस 8 घंटे के लिए आपके पेरेंट्स ने भेजा है कि जाओ एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट इन द सेंस जाओ कॉलेज में पढ़ाई करो, है ना? Now the next point is waiting time. Waiting time basically क्या होता है? The time spent in the ready queue for the allocation of CPU. For the allocation of CPU. For example, अभी ये सोना मैम की क्लास थी, ठीक है? उनकी साइड से कुछ इशू आया जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई. आपकी क्लास 12 बजे से चलनी थी, है ना? 12:10 पे मैम का मैसेज आया कि भाई क्लास नहीं हो पाएगी. या इन केस मान लो मैम 12:10 से क्लास स्टार्ट कर दी, लेकिन आप लोग क्लास में लॉगिन कितने बजे के लिए थे? 12 बजे से. आपने 12:10 तक वेट किया ना, तो ये जो 10 मिनट आपने वेट किया है, ये आपका वेटिंग टाइम हो गया. मान लो फॉर एग्जांपल 12:10 पे सोना मैम ने क्लास स्टार्ट कर दी होती, नेटवर्क कोई इशू ना होता, नेटवर्क इशू, क्लास स्टार्ट कर दी होती. 12:25 पे फिर से उनकी साइड पे 10 मिनट, 12:25 से 12:35 तक क्लास फिर से नहीं चल पाई, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, कनेक्टिविटी, डेटा, एनी रीजंस, है ना? देयर आर नंबर ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन 12:25 से 12:35 तक क्लास नहीं चली. नाउ 12:35 से फिर से कंटिन्यू हुई, तो आपने स्टार्टिंग में 10 मिनट वेट किया था, फिर जहां के 10 मिनट वेट किया. तो ऐसे कोई भी प्रोसेस जब उसको एग्जीक्यूट होना होता है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक वो जितना वेट करता है, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम. एनी डाउट्स क्लास? Any doubts class? Any doubt regarding waiting time?
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, व्हाट इज शेड्यूलिंग, उसका एक आंसर आया था, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी पुट जॉब्स इन अ क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। नहीं बेटा, गलत इन्फॉर्मेशन ये डिफिनेशन नहीं होती है। शेड्यूलिंग का मतलब सिंपल सा होता है, इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज टू एग्जीक्यूट द पेंडिंग जॉब्स। ये कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्यू में रखते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। शेड्यूलिंग हमारा एक सेट ऑफ पॉलिसीज होता है, ओके। नाउ इन चारों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, इनमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। एनीवन? ओके, so next criteria is these are the 4 criteria. Next criteria is response time. Response time. Now if we talk about response time, तो अभी आपने एक एग्जांपल देखा था कि 12 से 12:10 तक आपने वेट किया, फिर 12:25 से 12:35 तक आपने वेट किया। जो टोटल वेट था दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम इज द टाइम by which a process waits for the allocation of CPU for the first time. Means to say first time process जितना वेट करता है for the allocation of CPU, that is called the response time. ओके, सो यहाँ पर रिस्पांस टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग में जो उसने वेट किया था, फर्स्ट टाइम जो उसने वेट किया था, वो जो वैल्यू होगी दैट इज द रिस्पांस टाइम। तो ये जो 10 होगा स्टार्टिंग वाला, वो रिस्पांस टाइम होगा। अगर हम वेटिंग टाइम की बात करेंगे तो टोटल जितना वेट किया था दैट इज वेटिंग टाइम, फर्स्ट टाइम जितना वेट किया था दैट इज रिस्पांस टाइम। यही दोनों में डिफरेंस भी होता है रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम में। रिस्पांस टाइम इज द wait time of the CPU for the first time. Waiting time is the wait time of the CPU for entire execution. Class, raise your queries if you have any doubts. Any doubts? Anyone? Respond in chat box. Okay. So this is all about the introductory part of the scheduling. Now we'll just start one by one scheduling algorithm. And this is very important topic as far as AKTU exam is concerned. PSU exam, GATE, FATE, NET, whatever the exams related to technical course, scheduling is a very important topic. Our first algorithm is FCFS. I'm again repeating, FCFS full form is first come first serve. First come first serve. Okay. So यहाँ पर क्या होगा, जो मेन मेमोरी में आपकी जो क्यू होती है, दिस इज कॉल्ड द रेडी क्यू। मेन मेमोरी में जो क्यू होती है जिसमें प्रोसेस पड़े रहते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू। मान लो यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ प्रोसेस पड़े हुए हैं P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो एज पर FCFS एल्गोरिथम जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में आया है सीपीयू उसी ऑर्डर में एलोकेट किया जाएगा। दैट मींस अगर प्रोसेस P1 पहले आया था क्यू में तो सबसे पहले प्रोसेस P1 को सीपीयू मिलेगा, फिर P2 को, फिर P3 को एंड सो ऑन। ठीक है, जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में आए होंगे उसी ऑर्डर में सीपीयू उनको एलोकेट किया जाएगा। FCFS ये कहता है फर्स्ट कम, जो सबसे पहले आया है, फर्स्ट सर्व, उसको सर्विस पहले दी जाएगी। ठीक है, नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, सपोज हमारे पास प्रोसेस है और प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम इज द टाइम, या वी कैन से बर्स्ट टाइम इज द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर व्हिच अ प्रोसेस हैज टू एग्जीक्यूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक फैकल्टी का लेक्चर कितना होता है, 55 मिनट का होता है फर्स्ट हाफ में, तो 55 मिनट उसका बर्स्ट टाइम है, यानी 55 मिनट के लिए उसको एग्जीक्यूट करना है। 55 मिनट अगर वो एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, है
और बर्स्ट टाइम एक वो टाइम है जितना कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस सक्सेसफुली अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मान लो मेरे पास 4 प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। ये इनके बर्स्ट टाइम है 5, 2, 1 और 4। ठीक है। नाउ हमें FCF के एल्गोरिथम के थ्रू क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में इसका आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में होता क्या है, या तो वो सारे प्रोसेसेस का अलग अलग पूछ लेगा, तो वो इंडिविजुअली पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा एवरेज में पूछ लेगा। तो शेड्यूलिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गैंट चार्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट के थ्रू हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ अब अगर आपको गैंट चार्ट समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आई कैन गिव यू गारंटी इन रिटर्न कि आपका क्वेश्चन शेड्यूलिंग का कभी गलत नहीं होगा, बस आपका गैंट चार्ट सही बनना चाहिए। तो दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो और देखो गैंट चार्ट कैसे बनता है। जब तक एक एक बंदे को डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहना, मैं गैंट चार्ट बताता रहूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, देखो FCFS ये कहता है कि जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में आया है उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कौन पहले आया कौन बाद में आया? क्योंकि किसी के अराइवल का टाइम तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और अगर अराइवल का टाइम नहीं दिया है, इन दैट केस वी ऑलवेज अज्यूम एट t=0 ऑल द प्रोसेसेस हैज अराइव्ड इन द सिस्टम। t=0 पे सारे प्रोसेसेस अराइव हो गए, बट उनके अराइवल का ऑर्डर यही है P1, P2, P3, P4। अब आप ये जब t=0 सारे एक साथ आ रहे हैं तो अराइवल का ऑर्डर ये कैसे बता सकते हैं? ये हमने अज्यूम किया है। जनरली क्वेश्चन जो आपके आएंगे उनमें अराइवल टाइम दे रखा होता है। अगर अराइवल टाइम दे रखा है तब तो हमें क्लियर हो ही जाएगा भाई कौन पहले आया कौन बाद में आएगा। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया है, इन दैट केस वी विल अज्यूम t=0 पे सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में आए हुए हैं और उनके आने का ऑर्डर ये है। ठीक है, अब देखो मान लो ये मेरी रेडी क्यू है, मैं इधर बना दे रहा हूं, उसमें P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, ये 4 प्रोसेस पड़े हुए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सीपीयू किसको मिलेगा? सीपीयू किसको मिलेगा? एल्गोरिथम क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले कौन सा आया है? प्रोसेस P1, यानी प्रोसेस P1 को सीपीयू मिलेगा, प्रोसेस P1 को सीपीयू मिलेगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो FCFS एल्गोरिथम होती है वो नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होती है। प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं, ये हम अभी जो है जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम आएगी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, यानी जिस प्रोसेस को सीपीयू एक बार मिल जाएगा दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट कंप्लीटली। नाउ सपोज स्टार्टिंग में मेरा 0 था, अब प्रोसेस P1 को जैसे ही सीपीयू मिला, प्रोसेस P1 का कितना टाइम था? 5 था, अपने वो 5 यूनिट्स को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P1 ने अपनी 5 यूनिट्स को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, नाउ जैसे ही अपने 5 यूनिट्स एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रोसेस P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट यहां से एग्जिट कर जाएगा। अब रेडी क्यू में कितने हैं? 3 प्रोसेस हैं, P2, P3 एंड P4। अब इन तीनों में पहले कौन आया था? इन तीनों पहले कौन सा? P2 आया था। तो अब अगली बार सीपीयू किसको मिलेगा? P2 को मिलेगा। अब देखो P2 के पास है कितना? 2 यूनिट्स एग्जीक्यूट करने हैं। अब जब अपनी ये 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी? भाई 5 तो पहले से था, P2 ने अपना 2 और एग्जीक्यूट किया तो यूनिट कितनी हो गई? 7। क्लियर? यहां तक क्लियर? नाउ अब जैसे P2 अपने 2 कंप्लीट कर लेगा, वो भी रेडी क्यू से खत्म, भाई पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। नाउ अब जो हमारे प्रोसेस बचे हैं P3 एंड P4, इनमें से नेक्स्ट अगला प्रोसेस का नंबर किसका आएगा? अब इनमें से जो पहले आया होगा उसका नंबर पहले आएगा। पहले कौन सा आया होगा? P3 को मिला। नाउ P3 के पास है कितना? 1 यूनिट का,
P3 ने अपना 1 एग्जीक्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर? नाउ P3 भी DDQ से खत्म हो जाएगा। नाउ अब जब एक सिंगल प्रोसेस है तो फिर चेक करना ही नहीं है, अगर एक सिंगल प्रोसेस है तब तो सीपीयू उसको मिलना ही मिलना है ना। तो प्रोसेस P4 को सीपीयू मिल गया, V4 का है कितना 4, तो 8 और 4 12 हो गया। एक चीज और याद रखना कि बर्स्ट टाइम का जो टोटल होता है 5 2 7 1 8 4 12, जो आपका गैंट चार्ट होगा, गैंट चार्ट के सबसे लास्ट का जो वैल्यू आएगी वही आएगी। अगर वैल्यू चेंज आ रही है दैट मींस आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक, तो 5 2 7 1 8 4 12 ये हो गया 12। अब ये बताओ पहले इस गैंट चार्ट में किसको किसको प्रॉब्लम है, फिर आगे का प्रोसेस में बताऊं कैसे सॉल्व किया जाता है। चैट बॉक्स में क्वेरी करिए जिसको जिसको प्रॉब्लम है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग गैंट चार्ट? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए भाई, इतना टाइम नहीं है। ओके, तो जनरली नो कर रहे हैं, तो वी अज्यूम कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब एक बार जब गैंट चार्ट ड्रा हो जाए उसके बाद भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमें क्वेश्चन तो ये पूछा था ना, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ और एवरेज वेटिंग टाइम बताओ, पे गैंट चार्ट नहीं पूछा था। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब उसके लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा था इसी क्वेश्चन में इसी में एक टेबल आगे ड्रा कर लो, फिनिश टाइम। एफटी में लिख रहा हूं शॉर्टकट में, इसको फिनिश टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस गैंट चार्ट को देख के देखो कि प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम क्या है। तो प्रोसेस P1 सबसे लास्ट में जहां पर एंड हो रहा होगा प्रोसेस P1, वो उसका फिनिश टाइम हो जाएगा। तो प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम क्या होगा, प्रोसेस P1 का यहां फिनिश हो रहा है यानी 5 हो गया फिनिश टाइम इसका। ठीक है, प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम कितना होगा, प्रोसेस P2 यहां पे फिनिश हो रहा है यानी 7 हो जाएगा। प्रोसेस P3 का फिनिश टाइम 8 हो गया, प्रोसेस P4 का फिनिश टाइम 12 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अगला काम होता है टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना, TAT। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी लास्ट काम में भी। मैंने यहाँ पर TAT लिखा है, टर्न अराउंड टाइम, शॉर्टकट में लिखा है टर्न अराउंड टाइम TAT। तो TAT का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, TAT इक्वल टू FT माइनस यानी फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम तो दे नहीं रखा था किसी का, तो हमने एज्यूम क्या किया था कि सबका अराइवल टाइम क्या है 0, यानी हमें करना क्या है फिनिश टाइम में से 0 माइनस कर देना है। तो TAT क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, 7 माइनस 0, 8 माइनस 0 एंड 12 माइनस 0। ये हमारा हो जाएगा, सबका टर्न अराउंड टाइम यही आ जाएगा। अब मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर देखो आ गया एवरेज TAT। अब एवरेज TAT क्या होगा, इन सबको ऐड कर लो, ऐड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। 5 7 12 12 24 8 32, 32 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 8, 32 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 8। तो जो टर्न अराउंड टाइम जो होगा टोटल वो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू TAT माइनस BT। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, बर्स्ट टाइम आपको पता है, इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को माइनस कर दो। तो देखो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 1 7 एंड 12 माइनस 4 8। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज के लिए सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 0 5 7 12 8 20, 20
डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 5। तो वेटिंग टाइम मेरा 5 आएगा और टर्न अराउंड टाइम 8 आएगा। नाउ एक चीज आप ये भी क्लियर कर लो कि आपने जो ये वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया है इसको अपने गैंट चार्ट से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन ये कह रहा है कि प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम 0 है। यहां देखो गैंट चार्ट में प्रोसेस P1 में गैंट चार्ट में देखो क्या है, प्रोसेस P1 को सीपीयू स्टार्टिंग से मिल गया था और अगर उसको सीपीयू स्टार्टिंग से मिल गया है तो उसको वेट कितना करना पड़ा, 0 का। प्रोसेस P2 को सीपीयू कहां, यहां से मिला है भाई, प्रोसेस P2 को सीपीयू यहां से मिला है ना, इस जगह से, और इस जगह की वैल्यू कितनी है 5, यानी प्रोसेस P2 को कितना वेट करना पड़ेगा 5 का। प्रोसेस P3 को सीपीयू यहां से मिला है और इसकी वैल्यू कितनी है 7, प्रोसेस P3 का कितना हो गया 7 हो गया। सिमिलरली प्रोसेस P4 को इतना वेट करना पड़ रहा है, इतने की वैल्यू कितनी है 8, प्रोसेस P4 का वेटिंग टाइम हो गया 8। जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करीब 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एल्गोरिथम के, तो फिर आप सीधे क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से कर ली तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये एक मेरा प्रोसेस है गैंट चार्ट बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नाउ रेज योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी। क्लास एनी डाउट्स? Class, any doubts? Raise your queries. Okay. तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग चेंज करेंगे अब। तो मेरे ख्याल से एफसीएफएस सबको क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा एफसीएफएस में ही क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम लोग ना। प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, तीन चीजें दे रखी हैं। प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। सपोज प्रोसेसेस आर P1, P2, P3, P4, P5, ये 5 प्रोसेसेस हो गए। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4, राइट। नाउ बर्स्ट टाइम इज 2, 1, 2, 3, 2. Now again the question is we have to find out the average turnaround time and the waiting time. और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वही है गैंट चार्ट बना के सॉल्व करना है। देखो ठीक, नाउ से अब मान लो ये मेरी रेडी क्यू है जहां पर प्रोसेसेस आएंगे और सीपीयू यहां से एलोकेट होगा, ठीक है। अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे अराइवल टाइम प्रोसेस P1 का क्या है 0, यानी t इक्वल टू 0 पे रेडी क्यू में सिर्फ एक प्रोसेस होगा P1, सिर्फ एक प्रोसेस होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है। और अब देखो, अब अगर रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है और हमें सीपीयू को एलोकेट करना है तो सीपीयू उसको मिल जाएगा। भाई प्रॉब्लम कब होती है जब किसी एक चीज को मोर देन 1 पर्सन हो, उनमें किसी एक को देना हो। जब एक ही प्रोसेस है किसी एक ही को देना है तो उसी को मिल जाएगा। तो प्रोसेस P1 को सीपीयू मिल जाएगा, क्लियर। वो कब तक एग्जीक्यूट करेगा, देखो एक तक तो कोई प्रोसेस नहीं आ रहा तो एक तक उसने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया, ठीक है। जैसे ही एक टाइम कंप्लीट होगा, जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगी, प्रोसेस P2 भी रेडी क्यू में अराइव हो जाएगा। प्रोसेस P2 जो है रेडी क्यू में t इक्वल टू 1 पे आ गया, ठीक है। बट हमने आपको बताया था कि जो एफसीएफएस एल्गोरिथम होती है नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी, जिसको सीपीयू एक बार मिल जाएगा वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा,
पूरा पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेस P1 ने अपना फिर से आगे कंटिन्यू कर लिया। क्लास अटेंडेंस दे दिए चैट बॉक्स में। प्रोसेस P1 देखो, प्रोसेस P1 में कितने 2 यूनिट थी ना, एक यहाँ एग्जीक्यूट किया, यहाँ 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर लिया। अब जैसे 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, 2 पे देखो एक नया प्रोसेस P3 भी रेडी क्यू में आ जाएगा। P = 2 पे नया प्रोसेस P3 आ गया, प्लस प्रोसेस P1 अपना कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है कंप्लीटली, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? अब इसमें देखो मेरे पास क्यू में 2 प्रोसेस है, T = 1 पे P2 आया था, T = 2 पे P3 आया था। अब इन दोनों में से सीपीयू पहले किसको मिलेगा? FCFS जो पहले आया था, यानी कि प्रोसेस P2 को मिलेगा। प्रोसेस P2 ने अपना एक एग्जीक्यूट किया, टाइम हो गया 3। जैसे टाइम 3 होगा, 3 पे नया प्रोसेस P4 आ रहा है, T = 3 पे नया प्रोसेस P4 रेडी क्यू में जा रहा है। ठीक है ना? अब इसने अपना एक एग्जीक्यूट कर लेगा, तो ये पूरा पूरा खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही था, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब T = 3 पे मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, एक है P3, एक है P4। P3 का अराइवल है 2 पे, P4 का अराइवल है 3 पे। इन दोनों में से सीपीयू पहले किसको मिलेगा? जो पहले आया था, यानी कि P3 को मिलेगा। तो P3 को सीपीयू मिला, P3 अपने 2 एग्जीक्यूट करेगा, टाइम कितना होगा 5, और उसी 5 में इंटरमीडिएट पे कहीं 4 भी तो आया होगा ना, और 4 पे नया प्रोसेस P5 रेडी क्यू में आ जाएगा। T = 4 पे नया प्रोसेस P5 रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, अब P3 ने अपने 2 एग्जीक्यूट कर लिए, 2 ही थे इसके, तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद 2 प्रोसेस है, एक 3 पे आया है, एक 4 पे आया है। पहले किसको एग्जीक्यूट करना है? 3 वाले को, यानी कि प्रोसेस P4। P4 का है कितना? 3। 3 अपने एग्जीक्यूट किए, कितना हो गया? 8। नाउ इसके बाद प्रोसेस P5, P5 इसका कितना है? 2। ये अपने 2 एग्जीक्यूट करेगा, 10। देखो क्या सब 10 आ रहा है, 2 1 3 2 5 3 8 2 10। ठीक है, अब अगला काम मेरा क्या है? जब एक बार गैंट चार्ट बन गया, अगला काम क्या है? फिनिश टाइम कैलकुलेट करना। फिनिश टाइम देखो क्या होगा, प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम कितना होगा? प्रोसेस P1 कहां पर? यहां पे एंड हो रहा है। प्रोसेस P1 का फिनिश टाइम कितना होगा? 2। प्रोसेस P2 का फिनिश टाइम कितना होगा? 3। P4 का सॉरी P3 का फिनिश टाइम कितना होगा? 5। P4 का 8, P5 का 10। अब अगला काम क्या है? टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना। टर्न अराउंड टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था? फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी इसमें से ये माइनस 2 - 0, 3 - 1 2, 5 - 2 3, 8 - 3 5, 10 - 4 6। हमने क्या किया है? इस वाले कॉलम को, फिनिश टाइम को अराइवल टाइम से माइनस कर दिया है। ठीक है, नाउ अगला काम क्या है? वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना। वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था? TAT को BT से माइनस करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 2 - 2 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 6 - 2 4। ये मेरा आया वेटिंग टाइम। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं इनका सम कर लूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कर दूंगा। अगर मुझे इंडिविजुअल पूछ रहा है कि प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम कितना है, तो प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम कितना है? 1। प्रोसेस P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है? P3 का टर्न अराउंड कितना है? 3 है ना। अब चाहे इंडिविजुअल पूछे चाहे एवरेज पूछे, सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? कोई क्वेरी किसी की? इसको, इस डेटा को गैंट चार्ट से एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम 0 बोल रहा है। प्रोसेस P1 को स्टार्टिंग से सीपीयू मिल गया था ना, उसको कुछ वेट तो करना नहीं पड़ा, ठीक, तो उसका 0 हो गया। प्रोसेस P2 का वेटिंग टाइम 2 बोल रहा है। देखो प्रोसेस P2 को सीपीयू मिला कब है? 2 यूनिट वेट करने के बाद मिला है, मतलब ये इसकी वैल्यू 2 है ना, यहां से सीपीयू मिला है इसको, यानी इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू है 1, तो 1 हुई कैसे भाई? 2 पे मिला, इतना 2 वेट करने के बाद मिला तो जरूर है, लेकिन प्रोसेस P2 आया ही 1 कंप्लीट करने के बाद है, वो 0। ये वैल्यू 2 कब होती? जब अगर प्रोसेस P2 0 पे आ गया होता, लेकिन प्रोसेस P2 का जो अराइवल टाइम है वो 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड के बाद आया है, यानी यहां कहीं आया है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली
प्रोसेस P3 की जो एक्चुअल वैल्यू है एज पर गैंट चार्ट वो इतना वेट है, इतना वेट था, लेकिन वो आया कब है, वो आया कहां पर है, यहां पर है। P3 अराइवल टाइम कितना 2 पे आया है, यानी जब टाइम 2 कंप्लीट हो गया तब आया, यानी फिजिकल इतना एक्चुअल वेट उसने इतना किया है। क्लियर है चीज? क्लास रेज योर क्वेरीज। Anyone have any doubts? Okay then, let's meet in the next class at 1:35. Okay, thank you class, thank you.